Hello students, good morning. Today I am going to teach you the second chapter of your literature book, and the title of this story is The Little Prince. In this story we will read about the writer and a person who met him in a desert when he was alone in that desert 1,000 miles away from any human habitation. So first I will read out this story in English and then I will tell you the Hindi of this story. So just listen carefully. Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. तो राइटर यहाँ लिखते हैं कि when he was only 6 years old, he saw a magnificent picture book, and the name of that book was True Stories from Nature, in which he saw some pictures which impressed him very much. तो ये कहते हैं कि जब मैं 6 वर्ष का था मैंने एक पिक्चर बुक देखी जिसका नाम था ट्रू स्टोरीज फ्रॉम नेचर. ये प्रारंभिक अवस्था में जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी उस समय के उसके जंगलों के बारे में वर्णन किया गया था. इसमें एक पिक्चर था एक अजगर का जो एक जानवर को निगल रहा है. उस तस्वीर का एक कॉपी इस राइटर ने नीचे दिया है जिसे हम देख सकते हैं. In the book it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move and they slip through the 6 months that they need for digestion. तो उस किताब में लिखा हुआ था कि जो अजगर सांप होते हैं वो अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं बिना उसे चबाए हुए, और उसके बाद वो 6 महीने तक उसी जगह पड़े रहते हैं ताकि उसे पचा सकें. I pondered deeply then over the adventures of the jungle, and after some work with a colored pencil I succeeded in making my first drawing, my drawing number 1. It looked something like this. तो उस चित्र को देखने के बाद ये गहराई से सोचने लगे, और उसके बाद जब इन्होंने जंगल के रोमांच के बारे में जानने की कोशिश की, उसके बारे में बहुत सोचा, तो इन्होंने भी एक तस्वीर बनाने की कोशिश की. रंगीन पेंसिल लिया और उससे रंगीन पेंसिल के माध्यम से इन्होंने एक ड्राइंग बनाया, और काफ़ी प्रयास के बाद ये अपने पहले ड्राइंग को बनाने में, जो इनका ड्राइंग नंबर 1 था, उसे बनाने में सफलता प्राप्त की, जो कुछ इस तरह का था जिसकी चित्र नीचे दी गई है. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them, but they answered, frightened? Why should anyone be frightened by a hat? तो चित्र बनाने के बाद इन्होंने जो बड़े लोग थे उन्हें अपने चित्र को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या ये ड्राइंग आपको डरा रहा है. तो उन लोगों ने जवाब दिया, डराना? कोई एक हैट के चित्र से क्यों डरेगा? My drawing was not a picture of a hat, it was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of a boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. उसके बाद जब बड़ों का जवाब उन्होंने सुना तो इन्हें निराशा हुई, और इन्होंने ये जानकर कि बड़े को समझाने के लिए एक और चित्र बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हैट का चित्र तो बनाया नहीं था, इन्होंने बनाया था बोआ कंस्ट्रिक्टर का जो एक हाथी को निगल रहा है. तो इन्होंने जब देखा कि बड़े इस चित्र को देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो इन्होंने एक दूसरा ड्राइंग बनाया
जिसमें उसके अंदर की तस्वीर बनाई इन्होंने, और उसमें इन्होंने बोआ कंस्ट्रक्टर के अंदर एक हाथी का चित्र बनाया, जिसका तस्वीर इन्होंने नीचे दिया हुआ है। The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictor, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why at the age of 6 I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. तो जब बड़ों का जवाब इन्हें समुचित नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया कि बड़े ने जब इनसे सुझाव दिया इन्हें कि अपने ड्राइंग को एक तरफ रख दो और अपने पढ़ाई को जारी रखो, अपने पढ़ाई को की तरफ ध्यान दो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अरिथमेटिक और ग्रामर की पढ़ाई पर ध्यान दो। यही वजह है कि 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने उस शानदार पेंटर के कैरियर को चुनने की जगह इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़े को कुछ समझाने के लिए हमेशा उन्हें चीज़ों को समझाना पड़ता है पूरा विस्तार से, जो कि किसी बच्चे के लिए उबाऊ हो सकता है। So then I choose another profession and learn to pilot airplanes. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. इसलिए इन्होंने बड़ों के जवाब से निराश होकर अपने पेंटर के कैरियर को छोड़ दिया और 6 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक पायलट बनने का सोचा, और उसके बाद ये पायलट बने और विश्व के कई जगह पर भ्रमण किया। आगे ये लिखते हैं कि ज्योग्राफी इनके लिए काफ़ी मददगार रहा, क्योंकि ये ज्योग्राफी की जानकारी की वजह से बड़े आसानी से जगहों के बीच अंतर कर सकते थे, और दिशा का ज्ञान होने की वजह से ये अगर कोई रात में खो भी जाए तो आसानी से वो रास्ता ढूंढ सकता है। In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequences. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि इस तरह से इन्होंने बहुत सारे लोगों से भेंट की, बहुत सारी जगहों पर गए, और जो समझदार लोग थे उन लोगों से भी अपने बारे में, अपने चित्र के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन इनको यही लगा कि सबके राय विचार एक ही हैं। Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number 1, which I have always kept. I would try to find out so if this was a person of true understanding, but whoever it was, he or she would always say. तो जब कभी ये किसी ऐसे विद्वान लोगों से मिलते थे, ये चाहते थे कि उसको अपना पहला चित्र दिखाकर उसके बारे में जानकारी लें, लेकिन ये जिससे भी मिले सबका एक ही जवाब था कि वो हैट की तस्वीर है। Then I would never talk to the person about boa constrictor. इसके बाद इन्होंने लोगों से boa constrictor के बारे में पूछना छोड़ दिया। और Periamal forest or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about
bridge and golf and politics and neckties, and the grown-ups would be greatly pleased to have met such a sensible man. इसके बाद इन्होंने अपने उस ड्राइंग के बारे में लोगों से चर्चा करनी बंद कर दी और ये लोगों से अब जब मिलते तो उससे ब्रिज, गोल्फ, पॉलिटिक्स और नेकटाइज के बारे में बात करते और जो बड़े लोग थे वो भी काफ़ी प्रसन्न होते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति से भेंट हो रही है. So I lived my life alone without anyone that could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara. 6 years ago, something was broken in my engine, and as I had with my neither mechanic nor any passenger, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. इसके बाद ये अपना एकाकी जीवन जीने लगे बिना किसी के और न किसी से बात करते थे तब तक जब तक ये एक बार सहारा डेजर्ट में, सहारा मरुभूमि में इनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया. ये 6 साल पहले की बात है. इनके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और इनके साथ ना तो कोई मैकेनिक था ना ही उस पर कोई पैसेंजर थे, इसलिए इन्हें अकेले ही उस इंजन का रिपेयर करना था. इनके सामने जीवन मरण का प्रश्न आ गया था और इनके पास मुश्किल से 1 हफ्ता चलने लायक पानी था. The first night then I went to sleep on the sand 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Then you can imagine my amazement at sunrise when I awakened by an odd little voice. It said. तो पहला रात इन्होंने बालू या रेत पे सोकर बिताया. हजारों मील, किसी भी मानव बस्ती से हजारों मील दूर. ये अपने आप को उस टूटे हुए जहाज़ के नाविक से भी अकेला पा रहे थे जिसका जहाज़ समुद्र के बीच में टूट गया हो. ये उससे भी ज़्यादा अपने आप को अकेला पा रहे थे क्योंकि ये हजारों मील दूर थे किसी भी मानव बस्ती से. और जब ये सुबह उठे एक आवाज़ सुनकर तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित हुए